Hello friends, I'm Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a very new topic, that is determiners. So determiners are those words that are prefixed before nouns. मतलब कि determiners ऐसे अक्षर होते हैं जो कि हम noun से पहले लगाए जाते हैं to determine their meaning, उनका meaning को determine करने के लिए. They can be divided into the following types. और आगे किन किन types में वो divide हो सकते हैं? The first one is articles. Articles तो I guess आपको पता होगा, होने चाहिए. A and the, demonstratives this, that, these, those. So possessives में आ जाएगा my, your, our, his, her, its and their. ऐसे indefinite adjectives and others. So now let's discuss each of them one by one. The first one is articles. The two indefinite articles in English language are a and an. ये पता होना चाहिए. English language के अंदर जो दो indefinite articles है वो कौन से? a और an. और definite वाला कौन सा है? the. Now use of a takes place in the following instances, in places where the following word starts with a consonant sound. अब कोई अक्षर जो consonant sound से start होता है. consonants क्या होते हैं? a, e, i, o, u के अलावा जितने भी alphabets हैं English language में तो वो क्या हो जाते हैं? consonants. Also a is used where the following word is a singular countable noun. मतलब कि एक singular countable noun के साथ भी हम क्या use करते हैं? a. Places where the following word is a singular countable noun starts with a vowel sound. अगर vowel sound से start होता है तो हम क्या use करते हैं? an. Example, I have never seen a gun. मैंने कभी गन नहीं देखी. अब गन क्या है? जी क्या है? consonant sound. तो हम लोग क्या use करते हैं? a. I saw a sports bike at the store today. The luxury car is a rich man's vehicle. My brother has joined the NDA. अब इसमें क्या है? joined the NDA. अब NDA हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं कि NDA ज्वाइन करी है मेरे ब्रदर ने, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? the. Now demonstratives. The demonstrative determiners in the English language are this, that, these and those. The demonstrative determiner that is used to avoid repetition of a preceding noun. My shorts are better than those of my brother. अब हम बार बार तो नहीं यूज़ करेंगे ना, my shorts are better than the shorts of my brother. अब इसमें क्या है? my shorts फिर repeat हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे? those. My shorts are better than those of my brother. मतलब कि जो मेरी shorts है मेरे भाई के shorts से ज़्यादा better है. Our defense academics are better than those of Afghanistan. इसमें भी सेम केस बन रहा. The demonstrative determiner this is used to refer to a person or a person's thing or things near to the speaker. For example, this is the best coffee I have had. मतलब कि जो ये वाली कॉफ़ी है आज तक की बेस्ट कॉफ़ी है जितनी मैंने पी है. अब इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? दिस हम क्यों यूज़ करते हैं? कब यूज़ करेंगे? जब जो चीज़ हम कॉफ़ी के बारे में बात कर रहे हैं, कॉफ़ी जो स्पीकर जो बोल रहा है उसके एकदम पास में पड़ी है तो इसलिए बोल रहा है दिस इज़ द बेस्ट कॉफ़ी आई हैव एवर हैड. These magazines are very good. अगर हमें प्लूरल में यूज़ करना है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? these. The demonstrative determiner that refers to a person, persons or thing or things far from the speaker. This किसके लिए यूज़ कर रहे थे? स्पीकर के एकदम नियर वाली चीज़ के लिए. अब हम that किसके लिए यूज़ करेंगे? स्पीकर से जो थोड़ी दूर होंगी. फॉर एग्जाम्पल, गेट दैट डॉग आउट ऑफ द हाउस. मतलब कि वो वाले डॉग को घर से निकालो. पास में नहीं है, दूर है, तो हम लोग क्या यूज़ करें? दैट. थ्रो अवे दोज शूज इन द गार्बेज. दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज. थ्रो अवे मतलब कि फेंक दो वो वाले शूज गार्बेज में. Now possessives. The possessive determiners in the English language are my, your, our, his, her, its and their. These are used to show or determine the ownership of a certain thing. मतलब कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मुझे उसकी अपनी ownership दिखानी है कि ये चीज़ मेरी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? possessives. For example, this is my bike. ये बाइक मेरी है. It is their house. वो वाला ये घर किनका है? उनका है. तो उसमें their और यहाँ पर my क्या हो जाएगा? possessive. Indefinite adjectives. Example, some. मतलब कुछ. The indefinite adjective some is generally used in affirmative sentences with uncountable and plural countable nouns. For example, I have some good ideas on the project. अब हम जो ideas है count तो नहीं करके बता रहा ना वो कितने हैं. उसने बोला मेरे पास कुछ अच्छे ideas हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? some. अब any. It is used in questions when you want to ask whether something exists or not. मतलब any हम वो वाले चीज़ों में यूज़ करेंगे जब हम पूछना चाहते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं. इट इज़ ऑल्सो यूज, ज़्यादातर ये नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड एनी हेल्प. मुझे कोई मदद नहीं चाहिए.
डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर? इस चीज़ के ऊपर, इस मैटर के ऊपर क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है? अब इसमें क्या, हम क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो इसमें वही है, डू यू हैव एनी एडवाइस। लिटिल एंड मच, दीज आर यूज टू रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, मतलब कि जब हमें अमाउंट या क्वांटिटी बतानी हो तब हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल और मच। लिटिल इज यूज टू एम्फेसाइज दैट देयर इज अ स्मॉल अमाउंट। अब लिटिल क्या बोलता है कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट है, उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है कि स्मॉल अमाउंट अवेलेबल है। Whereas much is used for emphasizing on large quantities, और अगर हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ अवेलेबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मच। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई, मुझे कुछ समय दुबई में बिताना है, मतलब पहले ही टाइम कम है तो हम उसमें से भी थोड़ा सा ले रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिटिल। आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल फॉर माई एग्ज़ाम, मैंने अपने पेपर के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम पढ़ा है। डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविजन, क्या तुम्हें टेलीविजन देखना ज़्यादा पसंद है। फ्यू एंड मैनी, दीज आर मोस्टली यूज टू रेफर टू अ नंबर। अब ये फ्यू और मैनी किसके लिए होता है, अगर हमें नंबर में स्पेसिफिकली बताना हो कुछ। दे आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउंस, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउंस के पहले यूज होते हैं। फ्यू एम्फेसाइजेज अ स्मॉलर नंबर एंड मैनी रेफर्स टू मोर नंबर, ये तो आपको पता होगा। फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स, बहुत ही कम स्टूडेंट्स आज क्लास के लिए आए। मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम, बहुत सारे लोग इंडियन क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए गए। दे स्टेड इन द USA फॉर अ फ्यू डेज, वो US में स्टे करके आए कुछ दिन के लिए। अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं, काउंटेबल चीज़ बता रहे हैं, तो फ्यू और क्या यूज़ करेंगे हम लोग, मैनी। मोर, लेस एंड फ्यूअर, they are mostly used as comparative determiners. more is used before plural, more किसके लिए यूज होता है, plural और uncountable noun के लिए। to refer to a quantity or amount which is greater than another quantity, मतलब कि हमारे पास, हम कंपेयर कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ अगर अवेलेबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, more। फॉर एग्जाम्पल, ही डज मच मोर कार्डियो देन आई डू, वो मुझसे ज़्यादा कार्डियो करता है। अब इसमें क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मोर। द पुअर हैव लेस असेस टू क्लीनलीनेस, मतलब कि जो पुअर लोग हैं उनको पास क्लीनलीनेस का कम असेस है। अब इसमें भी कंपेयर कर रहे हैं, लेस आ जाएगा। देयर आर फ्यूअर कार्स हियर, यहाँ पर जो कार्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो क्या आ जाएगा, फ्यूअर। Now others में, there are many other determiners that are used in the English language and cannot be put under any fixed category. So all is mostly used with a plural verb followed by a countable plural noun, मतलब कि हम all use करते हैं ज़्यादातर एक plural verb के साथ, और followed मतलब कि all के साथ में क्या लगा होता है, countable plural noun. For example, all children cannot be treated in the same manner, हम हर एक बच्चे को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या, चिल्ड्रन है, काउंट कर सकते हैं हम उन लोग को, और चिल्ड्रन क्या एक प्लूरल नाउन है, तो हमने क्या लगाया, ऑल। बोथ, दिस डिटर्मिनर इज मोस्टली यूज टू टॉक अबाउट टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब कि अगर दो चीज़ें हैं एक ही किस्म की तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बोथ। फॉर एग्जाम्पल, बोथ रमन एंड राघव वेंट आउट फॉर अ मूवी, मतलब कि रमन और राघव दोनों मूवी के लिए गए। अब सेम काइंड मतलब क्या आ जाएगा इसमें, मतलब मूवी के लिए दोनों जने गए हैं। ही हेल्ड ऑरेंजेस इन बोथ हिज हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों में ऑरेंजेस पकड़े। Either and neither, these determiners usually refer to two persons or things but show that one out of the two is or is not involved in a situation, मतलब कि जो हम ये वाला determiner है either and neither, हम दो लोगों के लिए या दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि एक तो involved है situation में और दूसरा नहीं है। Neither is used mostly with the singular nouns and by either it can mean both of the two things. For example, टेक ईदर साइड ऑफ द बेड, बोथ आर द सेम, उसने बोला है कि उन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो, दोनों सेम ही तो हैं। नीदर ऑफ देम इज स्पीकिंग द ट्रूथ, उन दोनों में से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। नाउ ईच एंड एवरी, these determiners are used to refer to all the members of a group, अगर हमें एक ग्रुप के या फिर कोई पर्सन्स बताने, हर एक बंदे को, हर एक इंसान को हमें स्पेसिफिकली बताना है कि सभी लोग इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ईच एंड एवरी। When we talk about members as individuals, मतलब कि अगर हमने एक ग्रुप के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली रेफर करना है तो हम क्या वो यूज़ करेंगे, ईच। और एंड व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट अबाउट ऑल ऑफ देम, अगर हमने इकट्ठे उन लोगों के बारे में कुछ कहना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एवरी। फॉर एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी बोर्ड मेंबर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब कि हर एक बोर्ड मेंबर मीटिंग में प्रेजेंट था।
टुडे अ लैपटॉप एंड एयर कंडीशनर कैन बी सीन इन ईच हाउस, मतलब कि हर एक घर में आज एक एयर कंडीशनर और एक लैपटॉप देखा जाता है. एवरी चाइल्ड इज सेड टू हैव हिज और हर ओन स्पेशल एबिलिटीज़. हर एक बच्चा, मतलब कि हर एक बच्चे के अंदर माना जाता है कि उनकी अलग अलग यूनिक एबिलिटीज़ हैं. नाउ वन, this determiner is used when we are talking or writing about a group and we want to say something about a particular member of the group. मतलब कि ये वाला हम कब यूज़ करते हैं डिटर्मिनर, जब हम किसी ग्रुप के बारे में लिख रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं और हम कुछ कहना चाहते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, आई नो वन रेस्टोरेंट वेयर यू कैन गेट अमेजिंग चाइनीज़ फूड. मतलब कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में से वो कह रहा है कि मुझे एक रेस्टोरेंट पता है जहाँ पर तुम्हें अच्छा सा चाइनीज़ फूड मिल जाएगा. वन मैन वॉज फॉल्सली फ्रेम्ड इन अ मर्डर केस. मर्डर केस के अंदर एक आदमी को झूठा फंसाया गया. Another, it can be used with a singular countable noun to talk about an additional person or thing of the same type. For example, can I have another cup of coffee? मतलब एक कप ऑफ कॉफ़ी, या वो पहले ही ले चुका है, वो पूछ रहा है कि क्या मैं एक और कप ऑफ कॉफ़ी ले सकता हूँ. He opened another branch last month. मतलब कि पहले से ही बहुत सारी ब्रांचेस उसकी एग्जिस्ट कर रही थी, अब उसने एक और ब्रांच खोल ली. Other, this determiner is used with plural nouns or sometimes with uncountable nouns. Example से बेटर समझ आएगा. Other people might not have thought like this. मतलब बाकी लोगों ने ऐसा शायद नहीं सोचा होगा. The students are busy in other activities rather than participating in the maths class. मतलब कि उसने बोला जो बच्चे हैं वो बिजी हैं बाकी एक्टिविटीज़ में और मैथ्स की क्लास को छोड़ के जो एक्टिविटीज़ रह जाती हैं उनमें बिजी हैं. Enough. The determiner enough is used before uncountable noun. हम जो enough determiner है वो uncountable noun, मतलब कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके ऊपर यूज़ होता है, या फिर plural nouns के ऊपर. To say that there is something that is sufficient and enough as much as needed. मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो sufficient है, जितनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है. The hotel had enough rooms for all the guests. सब गेस्ट के लिए उस होटल के अंदर enough rooms थे, मतलब कि sufficient rooms थे. They did not have enough storage to store all that they had ordered for. मतलब कि उन्होंने जिस जब चीज़ के लिए ऑर्डर किया था उनके पास उतनी तो स्टोरेज थी ही नहीं कि वो सब चीज़ को वहाँ पर रख सकें. Most is used to indicate nearly all of an amount or a group. मतलब कि एक ग्रुप या एक अमाउंट की हर एक चीज़, हर पूरे का पूरा हम उसको कंसिडर कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिकवर फ्रॉम दिस फैटल डिसीज़. मतलब कि ये जो डेंजरस सी डिसीज़ जो फैल चुकी है, बहुत सारे लोग उसे रिकवर नहीं कर पाते. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर वर्किंग क्लास. इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग क्या हैं, वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं. Several, it is usually used to indicate an imprecise number that is not very large but more than 2. मतलब कि अगर हमें कोई एक नंबर के बारे में बताना है जो 2 से ज़्यादा हो, जो क्वांटिटी है, जो चीज़ है वो 2 से ज़्यादा है बट काफ़ी ज़्यादा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर सेवरल डेथ्स ड्यूरिंग द फ्लड्स इन यूपी. जब यूपी के अंदर फ्लड्स आए थे तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी. अब हमें नहीं पता कितने हुए हैं, तो उसने बोला कि 2 से ज़्यादा है बट इतने भी ज़्यादा नहीं है. There were several cases of fraud pending against him in the court. कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट बहुत सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े. So these were the determiners. We'll meet you in the next video with the next topic. Till then, keep revising.